Hello students, today we will discuss top 150 MCQs from the chapter Plant Growth and Development. These MCQs are very important for your class 11th as well as upcoming NEET exam. This is part 1 and in this video we will discuss top 75 and rest of the 75 we will discuss in the next part, that is part 2. So here comes the first MCQ. Which physiological process is involved in the swelling of piece of wood which is placed in water? The options are osmosis, plasmolysis, imbibition, and diffusion. So we know that when wood is placed in water, the process which occurs is imbibition. Imbibition वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पूरा पानी क्या है, वुड एब्जॉर्ब कर लेगा. So the process is imbibition. Now next question is, Which of the following is not an example of growth? कौन सा ऐसा इसमें से है जो growth का example नहीं है? पहला है expansion of leaf, second swelling of piece of wood in water, third is elongation of radicle, fourth is increase in girth of stem. हमें पता है कि swelling of piece of wood in water it is not the example of growth क्योंकि उसमें growth नहीं हो रही है. उसमें क्या हो रहा है, उसमें imbibition process हो रहा है, इसलिए this is not the example of growth. Now third question is the form of growth where in new cells are always being added to the plant body by the activity of meristem is called dash form of growth. First option is temporary, second is determinate, third is close, and fourth is open. So we know that it is open form of growth. Open form of growth कौन सी होती है? Open form of growth वो ग्रोथ है जिसमें क्या हो रही है, नई सेल्स, हम क्या कर रहे हैं, नई सेल्स को ऐड कर रहे हैं प्लांट बॉडी में बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम. और मेरिस्टेम हमें पता है क्या है, डिवाइडिंग सेल्स. मेरिस्टेम में क्या होती है, डिवाइडिंग सेल्स होती है, इसीलिए हम मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है it is the region where there is maximum activity of the cells. Cells are rapidly dividing. तो इस फॉर्म ऑफ ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ. Next question is, the dash meristems are responsible for primary growth of plants and principally contribute to the elongation of plants along their axis. First option is apical, second is lateral, third is subterminal, and fourth is intercalary. हमें पता है कौन सी, जब प्लांट में हम देखते हैं तो एपिकल रीजन कौन सा होता है, जहाँ के सबसे ऊपर वाला रीजन जहाँ एपिकल बड आती है. बाकी आसपास क्या हम देखते हैं, लैटरल रीजन, लैटरल बर्ड्स आती है. तो ये जो एपिकल रीजन है, तो एपिकल मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम है जो रिस्पॉन्सिबल है कौन सी ग्रोथ के लिए, प्राइमरी ग्रोथ के लिए. और ये क्या कंट्रीब्यूट करती है, इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग देयर एक्सिस. यही वो रीजन है जहाँ क्या होता है, इलोंगेशन होता है, यहीं से हमारा प्लांट क्या है, बढ़ना शुरू करेगा अलोंग देयर एक्सिस. सो एपिकल, this is the right answer. Next question is, in plants the period of growth is generally divided into dash 3, 4, 2, 5. हमें पता है प्लांट्स में जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है वो कितने में डिवाइड है, देयर आर 3 phases of growth. Next question is, lateral meristem is found in dicotyledons and monocotyledons, bryophytes and ferns and monocotyledons,
डाइकोटिलेडन्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो हमें पता है लैटरल मेरिस्टेम किस में मिलती है, हमारे मोस्टली डाइकोट्स में मिलती है और किस में मिलती है, जिम्नोस्पर्म्स में मिलती है। Next question is LT is equal to L0 plus RT. In this expression, the R represents rate of length at time t, rate length at time 0, elongation per unit time, and fourth is a constant. So हमें पता है कि हमारा ये R क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है elongation per unit time. Next question is if LT is the length of root at time t and R is growth rate, then dash LT is equal to L0 into RT, LT is equal to L0 plus R upon T, LT is equal to L0 plus T upon R, and last is LT is equal to L0 plus RT. तो हमें पता है इसकी जो एक्सप्रेशन की ग्रोथ के एक्सप्रेशन है वो क्या है, LT is equal to L0 plus RT. Next question is cells of dash zone have the thickest cell wall. First is axis, second is space of elongation, third is root apex and fourth is shoot apex. So हमें पता है कि कौन सी जोन में थिकेस्ट सेल वॉल होती है, वो होता है एक्सिस में. एक्सिस में हमारी जो सेल वॉल है बिल्कुल थिक होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज W1 is equal to W0 ERT. This expression is related to primary division of embryo cells, increase in length of the plant, development of lateral branches, and fourth is development of floral buds. So this expression, this denotes the increase in length of the plant. Next question is W1 is equal to W0 ERT. This expression is related to linear growth, exponential growth, ultimate stages of shoot formation. Fourth is lag phase of growth. तो हमें पता है कि जो ग्रोथ की एक्सप्रेशन है कौन से फेज को डिनोट करती है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फेज को डिनोट कर रही है. Now next question is only one daughter cell continues to divide while the other differentiates and matures in dash growth. First temporary, second is arithmetic, third is lateral, and fourth is geometric. So the correct answer is arithmetic growth. In arithmetic growth हम क्या देखते हैं कि एक हमारी डॉटर सेल है वो डिवाइड कर रही है और अदर जो है डिफरेंशिएट और मैच्योर कर रही हैं. सो दिस इज अर्थमेटिक ग्रोथ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a root elongation at a constant rate is an expression of dash temporary growth, arithmetic growth, lateral growth, geometric growth. तो root elongation किसका है एक्सप्रेशन, arithmetic growth का है. Now next question is cellular characteristic like rich protoplasm, large conspicuous nuclei, thin primary cellulosic cell walls, and abundant plasmodesmatal connections are zone of protection, zone of elongation, zone of maturation, and meristematic zone. तो ये सब किस में आते हैं हमारी, हमें पता है कि हमारी जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है वो क्या है, इट इज जोन ऑफ मैक्सिमम. In this zone, cells are rapidly dividing. तो क्या हो रही है हमारी जो सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो रिच प्रोटोप्लाज्म होता है, हमारे लार्ज न्यूक्लियाई मिलती है, थिन प्राइमरी सेलुलोसिक सेल फॉर्म्स होती हैं और बहुत सारे हमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस मिलते हैं. ये सब हमें किस में मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स ऑफ शूट एपेक्स हैज dense protoplasm, large conspicuous nuclei and secondary cell wall, dense protoplasm, small conspicuous nuclei and primary cell wall, vacuolated protoplasm, large conspicuous nuclei and primary cell wall, and fourth is dense protoplasm and large nuclei and primary cell wall. So shoot apex की cells
इसमें क्या होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, और जो न्यूक्लियाई होती है, लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई इज देयर एंड प्राइमरी सेल वॉल इज देयर. सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next question is, for the arithmetic growth equation LT is equal to L0 plus RT, curve obtained will be linear, parabolic, sigmoid, V-shaped. हमें पता है कैसा कर्व मिलता है हमें अर्थमेटिक ग्रोथ. इस इक्वेशन में हमें कर्व लीनियर मिलता है. वी ऑलवेज गेट लीनियर कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डैश ग्रोथ बोथ द प्रोजेनी सेल्स following mitotic cell division retain the ability to divide and continue to do so. Arithmetic, cambial, geometric and spring. तो हमें पता है कि जियोमेट्रिक फेज ऑफ ग्रोथ में दोनों सेल्स माइटोटिक सेल डिवीजन की एबिलिटी को रिटेन करती है और डिवाइड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डैश कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल सेल्स, tissues and organs of a plant and living organisms growing in natural environment. First linear, second parabolic, third sigmoid, fourth is V-shaped. तो हमें पता है कि हमारा कैसा कर्व मिलता है जब भी सेल्स डिवाइड कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, वी ऑलवेज गेट अ सिग्मोइड कर्व. तो हमें क्या है, एस शेप्ड कर्व मिलता है, सिग्मोइड. वी ऑलवेज गेट दिस sigmoid curve. Next question is, the exponential growth cannot be characterized by W1 is equal to W0 ERT, R is the relative growth rate, a sigmoid curve, a linear curve. तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ये कभी भी लीनियर कर्व से कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हम इसको. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में सेल्स क्या हो रही हैं, रैपिडली डिवाइड कर रही हैं. तो क्या होगा कि हमारा ग्रोथ कभी भी लीनियर नहीं होगा क्योंकि सेल्स बढ़ रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस कैन बी सीन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? अर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, 1 and 2, पैराबोला. हमें पता है दोनों अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ ये कब दिखते हैं, हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रोथ इज नॉट एसोसिएटेड विद डैश प्रोसेस, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक और डाइजेस्टिव. तो हमें पता है कि एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक होती है ग्रोथ में, बट डाइजेस्टिव प्रोसेस नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट. कौन सा इसमें से गलत स्टेटमेंट है? पहला, प्लांट ग्रोथ कुड बी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक. सेकंड, ग्रोथ इज इन डेट्रीमेंटल इन हायर प्लांट्स. थर्ड, व्हेन अ सेल लूजेस द कैपेसिटी टू डिवाइड इट लीड्स टू डिफरेंशिएशन. Fourth, in large trees, shoot apical cells maintain a high rate throughout the life of the cell. हमें पता है कौन सा गलत स्टेटमेंट है. ये गलत स्टेटमेंट है कि एक सेल क्या करती है, लूज कर देती है कैपेसिटी टू डिवाइड एंड इट लीड्स टू डिफरेंशिएशन. जब वो डिवाइड करेगी तभी डिफरेंशिएशन होगा. तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a set of valid parameter for measuring growth? Increase in length, area, cell type, volume, fresh weight, and cell number. Increase in length, dry weight, area, volume, and cell number. Increase in length, volume, cell type, and number. And last is increase in length, area, cell type, and cell number. तो हमें पता है क्या होता है, वैलिड पैरामीटर कौन सा है, इंक्रीज इन लेंथ, ड्राई वेट भी उसका इंक्रीज होगा, एरिया वॉल्यूम इंक्रीज होगा और सेल नंबर भी इंक्रीज होगा. जब भी ग्रोथ होगी ये तो सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं ये इंक्रीज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ग्रोइंग रूट टिप द सेल्स इन अ फेज ऑफ elongation डू नॉट शो इंक्रीज वैक्यूलेशन इन अ सेल, सेल एनलार्जमेंट, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, डेंस प्रोटोप्लाज्म. तो हमें पता है क्या नहीं दिखता है हमें फेज ऑफ elongation में,
डेंस प्रोटोप्लाज्म नहीं दिखता है. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. Next question is, in a plant growth, after the first zygotic division, the cell divide arithmetically, geometrically, arithmetically, then geometrically, and geometrically, then arithmetically. तो हमें फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन में जब सेल्स डिवाइड करती हैं कैसे करती हैं? सबसे पहले ज्योमेट्रिकली करती है एंड देन अर्थमेटिकली. नेक्स्ट, इन अ ज्योमेट्रिक ग्रोथ, lag phase comes before stationary phase. Stationary phase comes before exponential phase. Exponential phase comes up before stationary phase. And stationary phase comes after lag phase. तो हमें पता है जब ज्योमेट्रिक ग्रोथ हमारी होती है तो कौन सा फेज? सबसे पहले लैग फेज आता है, फिर कौन सा आता है? फिर हमारा एक्सपोनेंशियल फेज आता है और फिर स्टेशनरी फेज आता है. Next question is, in a sigmoid curve, x-axis is considered as size of growing organ, weight of growing organ, time required for growth, and stationary phase. तो हमें पता है सिग्मॉइड कर्व में एक्स एक्सिस क्या कंसीडर दिखाती है? ये दिखाती है टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट? रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है? सबसे पहले ऑप्शन है पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट. सेकेंड, पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर ओवर टाइम इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट. Measurement and comparison of total growth rate per unit time is called relative growth rate. And fourth is relative growth rate is the opposite of absolute growth rate. तो relative growth rate क्या होता है? Per unit initial parameter is called relative growth rate. Next question is, in a cell, the medium for enzymatic activity is blood, lymph, water, प्रोटोप्लाज्म. तो हमें पता है कि हमारे सेल में एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए क्या होता है? वाटर होता है. वाटर में सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं. आइडेंटिफाई द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ. वाटर, ऑक्सीजन, ग्रोथ हार्मोन्स ओनली. वाटर, नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स ओनली. वाटर, ऑक्सीजन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ओनली. वाटर, ऑक्सीजन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. तो हमें पता है कि जो ग्रोथ के लिए जरूरी है क्या है? वाटर भी है. क्या क्या जरूरी है? वाटर है, ऑक्सीजन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए किसमें? लार्ज क्वांटिटी में. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट रिक्वायर करता है इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. Next question is, identify the correct relationship. W1 is equal to W0 ERT. W1 is equal to W0 ER. W1 is equal to W1 ERT. W1 is equal to W0 E. So correct answer is W1 is equal to W0 ERT. Next question is, in linear growth curve, the value of R differs from that of exponential curve for being growth rate, absolute growth rate, time of growth, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द ऑर्गन. कैसे डिफर करती है लीनियर ग्रोथ कर्व में आर की वैल्यू? डिफर करती है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ ग्रोथ एट सेलुलर लेवल? सेलुलर लेवल पे ग्रोथ की पहली इवेंट क्या होती है? सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, टर्जिडिटी. हमें पता है सबसे पहले क्या होगा? जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें इंक्रीज होगा. सो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज द फर्स्ट इवेंट. Next question is, hydrophytes showing hydrophily is cotton, coriander, larkspur and ranunculus. तो हमें पता है correct answer is ranunculus. Now next question is, in trachy elements,
The protoplasm content is small, high, zero and homogeneous. तो हमें पता है कैसे होता है, हमारा प्रोटोप्लाज्म कंटेंट जीरो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल. कौन सा इसमें सेकेंडरी सेल वॉल का फीचर नहीं है. ऑप्शन क्या है. पहला है वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लिग्नोसेलुलोसिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल. तो हमें पता है कि सेलेक्टिवली परमिएबल क्या है, ये सेकेंडरी सेल वॉल का फीचर नहीं है सेलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि हमारी सेकेंडरी सेल वॉल सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, मतलब कि दे डू नॉट अलाउ certain substances to pass through them. तो सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, वो क्या करती हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल्स हमारी. so this is not the feature of selectively permeable. Next question is what is de-differentiation. Ability of plant cells to form tissue from meristem, ability of plant cells to form meristem for permanent tissue, ability of plant cells to stop divisional phase, ability of plant cell to make secretion from organs. तो हमें पता है कि डी डिफरेंशिएशन में क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू फॉर्म मेरिस्टेम फ्रॉम परमानेंट टिश्यू. Cork cambium develops due to redifferentiation, dedifferentiation, differentiation and meristematic activity. हमारी पता है हमें कॉर्क कैम्बियम कैसे डेवलप होती है, डी डिफरेंशिएशन से होती है. Cork cambium develops from interfascicular cambium, apical meristem, parenchyma cells and trachea elements. हमें पता है किससे डेवलप होती है कॉर्क कैम्बियम, parenchyma cells से डेवलप होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज formation of cambium from medullary rays is called redifferentiation, dedifferentiation, differentiation and bolting. तो हमें पता है ये जो कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन है किससे होता है, डी डिफरेंशिएशन से होता है. Next question is in some mature parenchyma cells are made to divide under controlled lab condition, then we will call this event as redifferentiation, dedifferentiation, differentiation and meristematic activity. तो हम इस इवेंट को क्या कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन. जो सेल्स हैं दोबारा से रीडिफरेंशिएट करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूमर इज द इफेक्ट ऑफ redifferentiation, dedifferentiation, differentiation and meristematic activity. हमारी जो ट्यूमर होती है जिसको हम कैंसर कहते हैं, किस वजह से होती है कि रीडिफरेंशिएशन की वजह से होती है. मतलब सेल्स दोबारा से दोबारा दे रैपिडली डिवाइड. तो जो सेल्स डिवाइड कर गई हैं दोबारा फिर डिवाइड करती हैं. दिस इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन. Next question is in woody trees the stem increases in diameter due to ultimate process of redifferentiation, dedifferentiation, differentiation and meristematic activity. So the correct answer is redifferentiation. Now next question is root cap cells differentiate from cells near the root apical meristem, cells away from root apical meristems, epidermal cells of root and trachea elements. तो हमारी रूट कैप सेल डिफरेंशिएट कैसे करती हैं, जब सेल्स मूव करती है अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. प्लाज्मेटिक ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन, मैचुरेशन. सो दीज आर द 4 ऑप्शंस. हमें इसमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट का. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या, एक्सपेंशन होता है, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन होता है और फाइनली सेल्स क्या करती है, मैच्योर कर जाती हैं. सो बी सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी. बोल्टिंग, हेट्रोफिली, फोटोपिरोडिज्म, वर्नलाइजेशन. तो है हमारी प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल हमें पता है क्या है, हेट्रोफिली है.
Next question is, which of the following is not an extrinsic factor of plant development? Light, oxygen, water and oxygen. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is extrinsic and intrinsic factors. जो external factors हैं, जो भारी फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं। और जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहेंगे। तो प्लांट के अंदर जो इंटरनल फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्स ग्रोथ के लिए, उनको हम क्या कहेंगे? इंटरनल फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सट्रिंसिक फैक्टर? कौन सा एक्सट्रिंसिक फैक्टर नहीं? हमें पता है लाइट क्या है, बाहर से मिलती है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। ऑक्सीजन भी बाहर से मिल रहा है प्लांट को, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। वाटर भी हम बाहर से ले रहे हैं, क्या एक्सट्रिंसिक फैक्टर नहीं है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर है। ऑक्सीजन कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है? हमारे प्लांट के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है। सो इट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट। तो क्या होगा? ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। Next question is, senescence is observed in meristematic cells, mature cells, cells involved in secondary growth and root cells only. तो senescence का प्रोसेस हमें कहाँ मिलता है? हमें मैच्योर सेल्स में मिलता है। जो सेल्स हमारी मैच्योर हो जाती हैं क्या दिखाती हैं? senescence दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्लांट ग्रोथ इज अ प्रोसेस रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, पार्शली रिवर्सिबल, डिसकंटिन्यूअस। तो हमें पता है प्लांट में ग्रोथ क्या होती है? इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि एक बार प्लांट की ग्रोथ हो गई तो वापस वो दोबारा से छोटे प्लांट में नहीं हो सकती, रिवर्सिबल नहीं है, वापस नहीं आ सकती है। सो इट इज इरिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर? लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड जेनेटिक। तो हमें पता है कि जो जेनेटिक है वो क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर्स है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर का मतलब क्या है? जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब है कि जीन्स जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और क्या दे रही है हमारे बॉडी को? जेनेटिक कैरेक्टर दे रही है। सो लाइट भी हमें बाहर से, हमें कौन हमें बताना है कौन नॉट एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो क्या है? ये सब तो बाहर से हमें लाइट, टेम्परेचर, वाटर, बट जो जीन्स है वो कहाँ मिल रही है? हमारे बॉडी के अंदर है। तो जेनेटिक फैक्टर क्या है? हरदम इंट्रिंसिक फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ग्रोथ माइनस डिफरेंशिएशन, ग्रोथ माइनस डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ इज डिफरेंशिएशन माइनस डेवलपमेंट। तो हमें पता है क्या करेक्ट है इसमें? डेवलपमेंट हमारा क्या होता है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कॉमन फेट ऑफ मैच्योर सेल्स? मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन, सीनेसेंस और एक्सपेंशन। तो हमें पता है मैच्योर जब सेल्स हो जाती है तो कौन से फेज में चली जाती है? सीनेसेंस फेज में चली जाती है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर प्लास्टिसिटी? changes in life phase only, changes in life phase and environment, changes in environment and genetic setup, changes in phases and genetic setup. तो हमें पता है कि क्या चाहिए हमें प्लास्टिसिटी के लिए? changes in life phase and environment. Next question is, which of the following shows heterophily due to response of different phases of life? सबसे these are the plants. तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सपुर। ये क्या दिखाते हैं? हेट्रोफिली दिखाते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। साइंटिफिक नेम ऑफ बटरकप इज रननकुलस, सैजिटेरिया, लिम्नोफिला एंड निम्फिया। हमें पता है बटरकप का साइंटिफिक नेम क्या है? रननकुलस। प्रेजेंस ऑफ टू काइंड्स ऑफ लीफ ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड हेट्रोफिली, हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी एंड होमोफिली। जब दो तरह की लीव्स होती हैं एक प्लांट में तो हम उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं हेट्रोफिली।
Next question is select the correct one. Heteropily is the cause of plasticity in plant. Heteropily is the effect of plasticity in plant. It is example of plasticity, and heteropily and plasticity are independent morphological features in plant. तो heteropily क्या है? Example है plasticity का. Next question is which of the following is intrinsic factor? कौन सा internal intrinsic factor है? Light, temperature, water and growth regulators. तो हमें पता है ये सारे क्या है तीनों? एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे प्लांट के अंदर मिलते हैं, तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं. सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम इज ड्यू टू एक्सिलरी बड्स, कैम्बियम, एपिकल बड एंड एडवेंटिशियस बड्स. तो हमें पता है सेकेंडरी ग्रोथ किसके वजह से होती है? कैम्बियम के वजह से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट नोन एज plant growth substances, phyco substances, phytohormones, plant hormones. हम इनको क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं और प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं. क्या नहीं कहते? हम कहते हैं फाइको सब्सटेंसेस नहीं कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर देयर? 2, 3, 4 एंड 5. हमें पता है हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं. The work of Charles Darwin and his son Francis Darwin on the growth was based on growth of coleoptile of canary glass, growth of hypocotyl, growth of epicotyl and growth of coleorrhiza. हमें पता है जो चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे बेस्ड था? ग्रोथ ऑफ coleoptile of canary glass. Which of the following activity in plant is not regulated by growth hormones? Flowering, fruiting, fruit wall, seed formation. तो हमें पता है फ्रूट वॉल जो बनती है वो हमारी ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन से रेगुलेट नहीं होती. Which of the following group is not a plant growth promoter? Gibberellins, abscisic acid, auxin and cytokinins. तो हमें पता है एब्सिसिक एसिड क्या होता है? ये प्रमोटर नहीं होता. हमें पता है कि हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं बेसिकली प्लांट हार्मोन्स आर ऑफ 2 टाइप. एक क्या होते हैं? प्रमोटर होते हैं और एक क्या होते हैं? इनहिबिटर होते हैं. प्रमोटर क्या करेंगे? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और ये क्या करेंगे? प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे. तो हमारे एब्सिसिक एसिड क्या होती है? हमारे एब्सिसिक एसिड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ABA. इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज इट इज रिलीज एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस. जब प्लांट में स्ट्रेस होती है तो हमारा क्या ये हार्मोन रिलीज होता है और एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर की तरह काम करता है. सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर. Next question is plant responses to wounds and stress of biotic and abiotic origin such as dormancy and abscission are regulated by gibberellins, abscisic acid, auxins, cytokinins. अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी एब्सिसिक एसिड क्या है? स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है. The PGR that acts as growth inhibitor play important role in plant responses to wounds and stress through tropic growth, लीफ एब्सिशन, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन और फ्लावरिंग. तो हमें पता है कैसे इनहिबिटर की तरह काम करते हैं? स्ट्रेस में लीफ एब्सिशन के थ्रू काम करते हैं. प्लांट हार्मोन दैट कैन एक्ट बोथ एज प्रमोटर एंड इनहिबिटर इज एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स. हमें पता है हमारा इथाइलिन ऐसा हार्मोन है जो बोथ प्रमोट भी करता है और इनहिबिट भी करता है, दोनों तरह से काम करता है. The conclusion drawn from observation that coleoptiles of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source. हमने देखा कोलियोप्टाइल्स क्या है? जब हमने लाइट दी तो वो उसकी तरफ झुकता है, उसकी तरफ ग्रो करता है
इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम? दीज आर द 4 ऑप्शंस। क्या कर सकते हैं कि हमारी जो कोलियोटाइल की टिप है was the site of transmittable influence। तो उसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस ग्रो कर रहा है, कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो लाइट की साइड ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए वो लाइट की तरफ झुकती है। ऑक्सिन was isolated from tip of coleoptiles of canary grass, tip of oat seedling, tip of coleoriza of canary grass। तो हमें कहाँ से मिली थी ऑक्सिन? कोलियोप्टाइल की टिप से ऑफ ओट सीडलिंग। Next question is auxin was isolated by, this is very important, many times in your exam आपके 11th में भी और आपके नीट में भी पूछा जाता है साइंटिस्ट का नाम जिनने हार्मोन्स दिए। लाइक ऑक्सिन किसने दिया था? ऑक्सिन दिया था FW वेंट ने। आइडेंटिफाई अ सिंथेटिक ऑक्सिन आउट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा ऐसे इसमें सिंथेटिक ऑक्सिन है? तो हमें पता है कि 2,4-D is a synthetic auxin. In a lab, stem cutting are prepared. Now, which of the following plant growth regulator will be best suited for formation of root? Root के लिए कौन सा हम plant growth regulator use करेंगे? Indole 3-acetic acid, gibberellic acid, ethylene and abscisic acid. हमें पता है क्या यूज करेंगे? ऑक्सिन यूज करेंगे, इंडोल 3-acetic acid. Which of the following is not regulated by auxin? Rooting, flowering, abscission of immature fruit, abscission of mature leaf। हमें पता है कि abscission of immature fruit ये क्या ऑक्सिन रेगुलेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सिन प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, एपिकल बड, एक्सिस, ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांच। तो हमें क्या पता है कि हमारा ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है? एपिकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। सीडलेस टोमेटोज आर प्रिपेयर्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो जो सीडलेस टोमेटोज होते हैं हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हम ऑक्सिन की एप्लीकेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that we can bring more videos for your revision of NEET exam as well as class 11.